Hello, dear students. Assalamu alaikum. Hope you will be fine. Today, we are going to discuss the management of natural resource. Forest as the chief natural resource, wildlife as the chief natural resource, and stakeholders. ठीक है? Today, we are going to discuss upon the natural resource management और natural resource में important natural resource like forests and wildlife as a natural resource. First of all, I would like to explain here what is forest. ठीक है? Forest or simply forests. Basically, forest होता क्या है? Forest, it is a large area of land where a huge number of plant species are surviving under nature. ठीक है? It is the huge area of land. जो forest जो है होते हैं, ये large area of land होता है where different flora is surviving under natural conditions in that particular region. ठीक है? That is known as forests. जहाँ पे आप trees देखोगे, a large area of land on which trees and other plants grow naturally is also known as a forest. ठीक है? तो फॉरेस्ट की क्या डेफिनेशन है? फॉरेस्ट, इट इज ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड where plants and trees grow naturally, or simply you can write it is a large area of land where different species of flora are surviving under that particular area. तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फॉरेस्ट. ठीक है? तो फॉरेस्ट्स क्या होते हैं? फॉरेस्ट एक लार्ज एरिया होता है जहाँ पे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, शर्ब्स होते हैं. जो भी प्लांट किंगडम के हर कोई स्पीशीज जो है, ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई स्पीशीज वहाँ पर्टिकुलर एरिया, लेकिन लार्ज एरिया ऑफ लैंड वेयर प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो नेचुरली, दैट इज योर फॉरेस्ट. ठीक है? It is, or you can simply refer it as a large area of land where different species of flora are surviving under that area. ठीक है? That is forest. तो नेक्स्ट चीफ इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स जो है, दैट इज वाइल्ड लाइफ. ठीक है? वाइल्ड लाइफ. तो ये वाइल्ड लाइफ क्या होता है? Basically, wildlife constitutes the living wild fauna which is surviving under forest. ठीक है? फॉरेस्ट लैंड में जो भी वाइल्डली फाना स्पीशीज है, फाना स्पीशीज मीन्स एनिमल स्पीशीज. ठीक है? तो that is surviving in that particular region, in that particular dense region of forest is wildly, that is known as wildlife. ठीक है? तो wildlife क्या होता है? Wildlife. It is wild fauna which is wildly, or simply you can refer it like that, it is fauna species which are wildly occurring
or simply surviving or surviving under forest environment उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ में फाना स्पीशीज मीन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स. फाना स्पीशीज that is species of animals which are growing, which are surviving under that particular forest environment or forest area or simply forest is known as wildlife. ठीक है. तो wild animals like lion, tiger, leopard, elephant, birds, wild birds. ठीक है. Elephant, rhinoceros, etc. So these are wild animals or wild fauna which is surviving under natural conditions within the forest land, and that is known as wildlife. ठीक है. अब forests and wildlife are the chief important resources, and their conservation is very important because you know forests as well as the wildlife are chief resources which are being utilized by different stakeholders. ठीक है. तो स्टेक होल्डर क्या होता है? स्टेक होल्डर stakeholder as far as the conservational biology is concerned. ठीक है. यहाँ पे स्टेक होल्डर कौन होते हैं? स्टेक होल्डर आर द पीपल who are interested or concerned in something. ठीक है. जो be people the stakeholders a person or people with an interest or concern in something. ठीक है. उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर. The person interested or concerned to something or concerned with something. ठीक है. तो उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर. As far as the management of natural resources is concerned, we have the stakeholders in the form of people which are living in and around the forests. यानी कि people who live in and around the forests are dependent to some extent on forest resources. तो उनको बोलते हैं हम, वो भी stakeholders है यहाँ पे. People who live in and around the forests and are dependent to some extent on forest resources. ठीक है. forest resources. तो ये होते हैं आपके ये भी स्टेक होल्डर है. द पीपल स्टेक होल्डर पीपल होते हैं जो फॉरेस्ट के आसपास, जो जंगल के आसपास रहते हैं और किसी न किसी तरीके से वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है इन ऑर्डर टू परफेक्ट देयर लाइफ. ठीक है. तो उनको वो भी आपके स्टेक होल्डर्स है. First stakeholder as far as the management of natural resources is concerned, as far as the conservation biology is concerned, we have a stakeholder. Let me first explain you what is stakeholder. It is the person or the people who are interested or who is interested or is concerned to something. ठीक है. वो किसी के साथ उसका जो है concern है, interested है, किसी भी मतलब एंगल से कोई इंटरेस्ट होगा उस चीज़ के साथ, तो उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर. ठीक है. तो पीपल है स्टेक होल्डर. कौन लोग?
वो लोग जो जंगल के आसपास रहते हैं और वो किसी न किसी तरीके से फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, यानी कि उस पर डिपेंडेंट है। तो पीपल है आपका स्टेक होल्डर, एक तो है पीपल who live in and around the forest and are dependent to some extent upon the forest resources, ठीक है। नेक्स्ट इज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेक होल्डर है द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये भी स्टेक होल्डर है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या होता है? इट इज द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट विच ऑनर्स द फॉरेस्ट लैंड एंड यू नो which honors the forest land and control the forest resources, ठीक है, and control the utilization of forest resources। तो उनको ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो भी स्टेक होल्डर्स है आपके। तो स्टेक होल्डर्स फॉरेस्ट, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ द फॉरेस्ट विच ऑनर्स द फॉरेस्ट लैंड एंड कंट्रोल्स द रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉरेस्ट, ठीक है। दीज आर सॉरी it is the forest department, it is the department of the government, it is the department of the government which owns the forest land, which owns the forest land and controls the resources from the forests and controls the resources from the forests। तो नेक्स्ट स्टेक होल्डर जो है, एज पर एज द मैनेजमेंट ऑफ द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इज कंसर्न, वी हैव स्टेक होल्डर्स in the form of the people who live in and around the forests and who are in any ways by this way or by that way depend upon the forest resources, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्टेक होल्डर है आपका, दैट इज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये क्या होता है? इट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का ही एक इदारा होता है। विच ऑनर्स द लैंड, जो फॉरेस्ट लैंड को ओन करते हैं, यानी कि वो अपना मानते हैं, एंड कंट्रोल इज द रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉरेस्ट्स, और जो भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उन पे उनका जो है अपना दबदबा होता है, उनको उनकी यूटिलाइजेशन को वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो दैट इज नेक्स्ट स्टेक होल्डर इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। थर्ड वन इज द इंडस्ट्रियलिस्ट्स, ठीक है। शाबाश। थर्ड वन नेक्स्ट जो आपके स्टेक होल्डर्स है इन टर्म्स ऑफ द कंजर्वेशन बायोलॉजी इज कंसर्न, और वी कैन सी द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज कंसर्न, वी हैव द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेक होल्डर दैट इज इंडस्ट्रियलिस्ट्स, ठीक है। इंडस्ट्रियलिस्ट्स तो इंडस्ट्रियलिस्ट्स भी स्टेक होल्डर से होते हैं। ये कौन होते हैं? ये लोग कौन होते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट्स होते हैं वही लोग जो इंडस्ट्रीज को रन करते हैं, गवर्न करते हैं, लेकिन उन इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल आपका इस्तेमाल होता है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस से ही होता है, वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस ही यूज होता है उसमें। यानी कि these are the people who use various forest products for their factories, ठीक है। these are the people who use various forest produces or forest productions or products, forest produces for their factories, ठीक है, for their factories। तो इंडस्ट्रियलिस्ट्स आपके नेक्स्ट स्टेक होल्डर्स है एज पर एज द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कंसर्न। इसमें आप नेक्स्ट जो स्टेक होल्डर ठहराते हम, दैट इज इंडस्ट्रियलिस्ट्स, and these are the people who use various forest products or forest produces for their factories। यानी कि वही लोग हैं जो फैक्ट्रीज को रन करने के लिए, गवर्न करने के लिए
फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स को इस्तेमाल करते हैं अपने फैक्ट्रीज में, ताकि वहाँ से नए नए प्रोडक्ट्स बना पाएँ। तो ये भी डिपेंडेंट्स होते हैं, जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है, बाय दिस वे और बाय दैट वे। फॉर इंस्टेंस, वुड फॉर मेकिंग पेपर एंड फर्नीचर एंड टेंडू लीव्स फॉर मेकिंग बीडीज। ठीक है, वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड पेपर एंड टेंडू लीव्स फॉर मेकिंग। यहाँ पे वुड फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, वुड दैट इज फॉरेस्ट प्रोड्यूस, it is used by the industrialists in the paper industry in order to produce the paper. ठीक है, wood, it is a production from the forest, it is a forest produce. ठीक है, forest product used in the manufacture of paper in paper industry, paper in paper industry, and furniture in furniture industry, furniture factory, जहाँ पे वुड ही इस्तेमाल होता है एज ए रॉ मटेरियल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ फर्नीचर। ठीक है, एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स आर द स्टेक होल्डर्स हु आर डिपेंडेंट्स ऑन द फॉरेस्ट टू प्रोड्यूस इन टर्म्स ऑफ द वुड। कॉटन है आपका जो प्लांट रिसोर्स है, उसको यूज़ किया जाता है इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। कॉटन कॉटन जो है, कॉटन इज द फॉर plant product which is utilized by industrialists in order to produce industrialists in textile। कौन सी इंडस्ट्री में? इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, to produce the clothes, industry, in order to manufacture the different clothes, cotton clothes। ठीक है, रबर इंडस्ट्री में रबर जो है इस्तेमाल होता है। आपका रबर प्लांट के बारे में आपने सुना होगा, उस पर वो डिपेंडेंट करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, वहाँ से रबर वैक्स एटसेट्रा। लैक होता है, जो भी लैक भी एक किस्म का रेजिन होता है, तो लैक इंडस्ट्री में वो इस्तेमाल होता है। तो वो रेजिन जो है वो लैक इंसेक्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन प्लांट सरफेस पे ही वो प्रोड्यूस करते हैं, टिविगस पे प्रोड्यूस करते हैं। वो प्लांट लीव्स पे फीड करके फिर जो है वैक्स सिक्रीट करते हैं, और वो वैक्स जो है, वैक्स की जो है वैक्स जो जिस पे वो जो प्लांट जो टिविगस होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, उस पे वो वैक्स सिक्रीट करते हैं। वैक्स इंसेक्ट दैट इज अ लैक इंसेक्ट है इन लैक इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रियलिस्ट्स का भी रोल है एज ए स्टेक होल्डर इन टर्म्स ऑफ द कंजर्वेशन बायोलॉजी और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कंसर्न। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपके दैट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट्स। ठीक है, फॉरेस्ट नेक्स्ट जो स्टेक होल्डर है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट्स है आपके। ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट्स कौन लोग होते हैं? ये वही लोग होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि फॉरेस्ट रिसोर्स को इस तरह यूटिलाइज किया जाए, फिर वो दैट विल लीड द डैमेज टू द एनवायरमेंट। तो उस हिसाब से जो है आपके जो फॉरेस्ट वो नहीं चाहते हैं, वो अपने फॉरेस्ट को अपने उसके नेचुरल ओरिजिनल एनवायरमेंट ही देखना पसंद करते हैं। द फॉरेस्टर्स एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट्स हु वांट टू सी द फॉरेस्टर्स इन देयर प्रिस्टाइन फॉर्म, यानी कि ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, ये खुद डिपेंड नहीं करते हैं इस पे, मतलब किस पे? फॉरेस्ट प्रोडक्शन पे। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट्स पीपल ही होते हैं, ये लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे जो है डिपेंडेंट नहीं है और यूटिलाइज भी नहीं करते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि हम इस फॉरेस्ट एनवायरनमेंट को अपने ही प्रिस्टाइन फॉर्म में देखें, यानी कि ओरिजिनल फॉर्म विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल हम इसके आगे चलेंगे।
तब तक के लिए गुड बाय।